Hello children, hope you all are doing good. So children, now you came to know about the difference between 2D shapes and 3D shapes. Remember here children, in 2D shapes it has only length and breadth, okay? And in 3D shape it has three things, means length, breadth, along with that height. Okay, is that clear? Next, I am going to show you something. See, I have here bangles. See, these are in a circle shape, right? So here I am arranging it one on another. See, like this. See, okay. See, now how it is looking? New shape, right? See, if I put this circle shape one on another, you will get this shape, and this is called a cylinder shape. Okay, here again I am showing you something from this carom coins. You might be familiar with these coins, carom coins, right? Here, see, I am arranging it same like bangles, one on another. See, see. Now how it is looking, children? See. So this shape is called cylindrical shape, or you can say cylinder, right? See, there is a small difference between these two cylinders. See, this one, if you see like this horizontally, or the upper surface, it looks like this. Means this covered surface it has. This one is called solid cylinder. See, the another one I am showing you here, the bangle one. See, if you see from upside, it looks like somewhat like this. See, is there anything inside? No, it is empty space. So this is a cylinder shape, but it has empty inside. Nothing is there inside. That's why it is called hollow cylinder. What it is called? Hollow cylinder. बच्चों आपको पता चला कि ऐसे ये कैरम कॉइन से जो मैंने सिलेंडर बनाया, तो इसके बीच में आपको ऐसा दिखेगा. बाद में आप ऐसे ऊपर से देख रहे तो इसमें ऐसा सरफेस दिखेगा. दिस इज़ नॉट एम्प्टी, इट्स अ सॉलिड, है ना. तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सिलेंडर. और ये जो मैंने बैंगल से बनाया हुआ है इधर, इसको भी सिलेंडर बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है ना. आपको दिख रहा है, मेरा हाथ ही है इधर अंदर. तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इसको हॉलो सिलेंडर. हॉलो मीन्स नथिंग इनसाइड, एम्प्टी. एम्प्टी को हम क्या बोलते हैं? हॉलो. तो ये हॉलो सिलेंडर है. पता चला आपको ये दोनों का डिफरेंस? दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर and this is a hollow cylinder. Here I have some more examples to show you. See, ये मेरे पास जो रॉड है, ये स्टील रॉड, ये देखो आप, दिख रहा है ना आपको? ये बड़ा रॉड है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है. और आप ऐसे देखें तो आपको क्या दिख रहा है अंदर? कुछ नहीं, है ना. तो ये कौन सा हो जाएगा? हॉलो या सॉलिड सिलेंडर? व्हाट वी कॉल दिस वन? दिस इज अ हॉलो सिलेंडर बिकॉज इनसाइड इट इज एम्प्टी. एंड नेक्स्ट वन आई एम शोइंग यू अ स्मॉल
small cylinder. Here see, it is packed from this side and this side. So this one is called a solid cylinder because the surfaces are covered. Okay. So children, I am showing you here on the screen some shapes, means cylinders. Some of them are hollow cylinder and some of them are solid cylinder. You have to check whether the given pictures are hollow cylinder or solid cylinder. You just mark it with the red color if it is a solid cylinder, mark it with blue color if it is a hollow cylinder. Okay. So here on the screen I am showing you iron rod. See how does it looks? इसको हम कौन सा वाला बताते हैं, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर, राइट. सो इसको हम कौन से कलर से, ये जो बॉक्स नीचे दिख रहा है ना आपको, उसमें आप कलर करना है रेड या ब्लू. फॉर सॉलिड सिलेंडर रेड कलर. नेक्स्ट सेकेंड वन प्लास्टिक पाइप है. In this plastic pipe, inside it is hollow, so it is a hollow cylinder. So नीचे बॉक्स में क्या रंग करना है, ब्लू कलर से फिलअप करना है क्योंकि ये hollow cylinder है. नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, वैक्स कैंडल. वैक्स कैंडल इसको कौन सा रंग से करना है, वेदर इट इज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, कौन सा पता है आपको? ये सॉलिड सिलेंडर, तो इसको हम रेड कलर से मार्क करना है. नेक्स्ट थ्रेड रील. आपके घर में ये सब चीज़ें मिलता ही है ना, तो दिस थ्रेड रील अंदर से कैसे हॉलो रहता है या सॉलिड? हॉलो रहता है ना. तो दिस शेप इज कॉल्ड solid cylinder, right? So you have to mark it this one with red color. Now you learned about the 2D shapes and 3D shapes. So what is the use of it, right? आपको पता नहीं कि ये क्या है, यूज़ है, ये सीखने के बाद हमको क्या मिलेगा, राइट? आप सोच रहे होंगे. तो मैं अभी आपको एक डेमो दिखाती हूँ. ओके. तो अब आप घर के सामने या घर में, किचन में, बाथरूम में आपने टाइल्स अरेंजमेंट देखा है घर में? यू माइट हैव सीन, राइट? सो हाउ इज़ द टाइल्स, दे हैव इन अ डिफरेंट शेप्स. इट माइट बी अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और एनी काइंड ऑफ डिफरेंट शेप्स, राइट? तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पास अभी जो है, ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल शेप का और ये सिलेंडर शेप और यू कैन से सर्कल शेप. इससे मैं टाइल्स कैसे अरेंज करना है मैं आपको बताती हूँ. ओके. फर्स्ट विल टेक दिस वन, द स्क्वायर वन. ये देखिए, आई एम अरेंजिंग इट लाइक दिस. ओके बच्चों, ये देखो टाइल्स घर में कैसे दिखता है, ऐसा ही ना. ये देखो मैंने ये किया, लगा लिया. सी, इज इट लुकिंग लाइक अ टाइल और अ फ्लोर? आपके घर में जो फ्लोर्स है, फ्लोरिंग किया हुआ है, ऐसा ही है ना. एक एक ये जो फर्शी है ऐसे मैंने ठीक से लगाया. अभी बच्चों, अभी आपको दिख रहा है इधर कुछ कहीं पे तो गैप दिख रहा है? नहीं ना. तो अभी और एक मैं दिखाती हूँ आपको. ये सर्कल वाला जो है, मैं इसी का भी टाइल्स डिफरेंट शेप करके मैं आपको दिखाती हूँ. देखेंगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, राइट?
ये देखो मैंने ऐसे ऐसे आई एम ट्राइंग इट टू नॉट लीव एनी गैप। मुझे गैप दिखाना नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि सर्कल से कैसे ये गैप को कवर करे, है ना। सी हियर you have two types of different tiles. In this square tiles or in this quadrilateral type of arrangement, you are not having any gaps. So here बच्चों, while lying the same shaped tiles, if they cover the floor without any gaps, then we can say these are the tiling टाइल्स। मीन्स आपको ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये स्क्वायर का ये एक के बाद हमने अरेंज किया इधर, और इधर सर्कल का भी अरेंज किया है। इधर आपको गैप दिख रहा है? नहीं, इधर आपको गैप दिख रहा है। ये देखो बीच बीच में कितना गैप पड़ा है ना, राइट। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों टाइलिंग मतलब टाइल्स ही है, डिफरेंट शेप्स भी है, लेकिन what is the difference? There is no gap in between these tiles. There is a gap between these tiles. Understood? इसमें गैप नहीं है, इसमें गैप दिख रहा है आपको, है ना। तो इसको हम टाइलिंग टाइल्स बोलते हैं और इसको हम नॉन टाइलिंग टाइल्स बोलते हैं। Why? So children, while lying this same shaped of tiles, they should cover the surface or they should cover the floor without any gap. Then only we can say that those tiles are tiling tiles. If you are arranging the same shape of tiles on a floor, they are showing some gaps over here and there, then those shape of tiles are called non-tiling tiles. Is that clear? बस आप इतना सोचो, सेम शेप का हमने टाइल्स अरेंज किया तो बीच में गैप्स नहीं आना चाहिए। नहीं आया तो उस टाइल्स को हम टाइलिंग टाइल्स बोलते हैं। गैप्स दिखे तो ये भी सेम शेप्स का ही टाइल्स है ना, लेकिन इसमें हम अरेंज किया तो इधर गैप्स दिख रहा है। आपने देखा होगा पार्किंग एरिया, है ना, उधर, और फ्लोरिंग घर में, बाथरूम के टाइल्स, किचन के टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट है ना शेप, ऑल आर नॉट इन अ सेम शेप, राइट। सो देयर इन द सम टाइल्स दे हैव some in between they have some space. In some tiles they won't leave any space while flooring. So here बच्चों आपको क्लियरली पता चला कि गैप मतलब ऐसे सेम शेप्स हमने अरेंज किया तो गैप नहीं पड़ा तो उसको टाइलिंग टाइल्स बोलते हैं। गैप दिखा तो आप उसको क्या बोलना है? नॉन टाइलिंग टाइल्स। इज दैट क्लियर किड्स? सो घर में आप भी ट्राई करो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का टाइल्स लेके कैसे उसका डिफरेंट फ्लोरिंग बनाना है। यू ट्राई इट विद द डिफरेंट शेप्स एंड find out that whether they are the tiling tiles or non-tiling tiles. Got it? Here on the screen I am showing you few different shapes arrangement of a tiles. Okay? In the first picture it is a square type of tiles, है ना। तो वो अरेंज करने के बाद आपको गैप दिख रहा है। Can you see any gap over there? No. So those are called tiling tiles. In the second shape, it is a U-shaped tiles. If you arrange it one on another or one by other, so बाजू बाजू में आप रखा तो टाइल्स अरेंजमेंट कैसा भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। करने के बाद आपको गैप नहीं दिखना चाहिए। गैप दिखा तो वो नॉन टाइलिंग टाइल्स हो जाएगा, है ना। गैप नहीं दिखा तो वो
tiling tiles हो जाएगा, right? Is that clear for you children? So all these things you came to know children today, and you have enjoyed with me, I think, isn't it? So thank you for watching.